ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೀತರಾಗಿ ಇಂತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಎರಡನ್ನೂ ಮೀರಿದವನು ಭಗವಂತ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೀತರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೇನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವರ ಮತ್ತು ಶಾಪವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವೀತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರಾವಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ವೀತರಾಗಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಗವಂತ ನಮಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವರವೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನಿಗಂತೂ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You can ask that question in English. Okay. And here's a very interesting question. As far as the Jain Shravakas are concerned, we consider Bhagavant as Viragi, one who is neither having Raga nor Dvesh. He is not at all having any hatredness. And when we are going to pray the Bhagavan, and what will be the result of that? Bhagavan is not going to give anything to us. And why we should pray for him then? This is the question raised by a Shravak here. And let me see how Pujya 105 Dhyansagar Maharaj Ji is going to answer for that. Over to Kshulak 105 Pujya Dhyansagar Maharaj. ओम नमः सिद्धिभ्यः. एक आम धारणा समस्त जैन वर्गों में, यानी जितने भी जैन समूह आज पाए जाते हैं भारत में, और भारत से जो लोग बाहर भी गए हुए हैं, उनमें एक आम धारणा है कि जिनेंद्र भगवान वीतराग हैं, वो कुछ भी लेते देते नहीं हैं. Lord Jinendra is devoid of all passions, all attachments, and all blemishes. So every Jain believes nowadays that he neither takes anything nor gives anything to anyone. Then what is the use of prayers? Prayer means asking something from someone, some greater being. When somebody asks something from him, that is called prayer. बड़ों से कुछ मांगा जाता है, श्रद्धा से, विनय से, उसको प्रार्थना कहते हैं. तो जब भगवान वीतराग हैं, कुछ लेते देते नहीं हैं, तो फिर जैन
परंपरा में प्रार्थना का क्या औचित्य है, क्या आवश्यकता है प्रार्थना की, तो इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज दिस, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेटमेंट that the Lord, being Vitrag, does not take anything nor he gives anything. This statement is half true. And they say that a half truth is a full lie. What is the half truth in that statement? ये आधा सच वाक्य है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है। आधा सच इसलिए कि भगवान कुछ लेते नहीं है, ये सच है, पर भगवान कुछ देते नहीं है ऐसा जैनागम ने स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया। देने की शैली साधारण मनुष्य से भिन्न है, लेकिन देते नहीं है ये धारणा आगम से भिन्न है, शास्त्र में नहीं है। अब भगवान देते हैं, इसके कुछ रेफरेंसेस हम आपके सामने रखते हैं शास्त्रों के। सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान के समावसरण में इंद्र ने जो सहस्त्रनाम लेकर उनकी स्तुति की है, 1008 नाम उन्होंने लेकर के भगवान की स्तुति की है। उन 1008 नामों में महादानो एक नाम है, वरप्रद, वरप्रद ये एक नाम है, फिर कल्प वृक्ष एक नाम है, कामधेनु एक नाम है, चिंतामणि एक नाम है, अभीष्टदः एक नाम है। ये सभी नाम न देने वाले के नहीं होते। महादानो ये जो शब्द है इसका अर्थ है महादानी है भगवान। तो महादानी कभी अदाता नहीं हो सकते, समझना बात है। He is the greatest donor that has been claimed by Saudharmendra, who performed the Jin Sahasranam Stotra in front of Adishwar Swami. He called him Mahadano, greatest of all donors. He also called him Abhishtada, the donor of your favorites. What is favorite for you, you get from there. He is that donor, Abhishtada. अभीष्ट मीन्स जो अपने को सबसे ज्यादा प्रिय है वो। और वरप्रद, इंद्र ऑल्सो कॉल्ड हिम वरप्रद। वर मीन्स better, comparatively better than everyone else. He is the donor of, he is a better donor. And he also called him Kalpavruksha. Kalpavruksha is the wish fulfilling tree. That tree under which when somebody asks anything, he gets it. कल्पतरु उस वृक्ष को कहते हैं जिसके नीचे कोई भी जो याचना करता है उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। जांचे सुर तरु देय सुख, इन 12 भावना of Pandit Budhar Das ji in Parshva Puran, it is written like that. And even in Atmanushasan Granth of Acharya Gunabhadra Swami, it is written. So he is Kalpavruksha, and Kalpavruksha cannot be Adata. Kalpavruksha Adata नहीं हो सकता। कल्पवृक्ष का काम ही देना होता है। और कामधेनु कहाँ? कामधेनु means that divine cow which fulfills all the kamnas, all the desires
ऑफ द रेसिपिएंट। कामधेनु उसको कहते हैं कि जो सब कामनाओं की पूर्ति करे। तो आदिनाथ भगवान को कामधेनु भी कहा और अभीष्टदह कहा। अभीष्टदह तो कहा ही था। एक और नाम था चिंतामणि। चिंतामणि मीन्स चिंतत चिंता रैन, वॉट एवर यू थिंक यू गेट। दैट मीन्स दैट भगवान कैन नॉट बी अदाता। He definitely is the greatest of all donors. But how is this possible? Because being Vitarag, he cannot favor anyone. That is the main problem. भगवान वीतराग है इसीलिए किसी का पक्ष नहीं ले सकते, फिर वो दाता कैसे हो गए? जिसको जो अभीष्ट है वो उसको कैसे दे सकते हैं? जब वो वीतराग है तो फिर किसी का पक्ष नहीं लेंगे। द आंसर इज रिटन इन तत्वानुशासन, ए ग्रंथ बाय आचार्य नागसेन। इन द वर्स 129, 129 नंबर श्लोक में आचार्य नागसेन तत्वानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, वीतरागोप्ययं देवो ध्यायमानो मुमुक्षुभिः स्वर्गापवर्ग फलदः शक्तिस्तस्य ही तादृशी। भले ही भगवान वीतराग हो, लेकिन जब दुखों से छूटने की इच्छा रखने वाले अथवा अन्य किसी भी बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले उनका ध्यान लगाते हैं, तो अगर वो ध्यान में आ जाते हैं भगवान, तो ये सारे काम कर डालते हैं। If you meditate on the divine being of Lord Adinath Swami, then once he settles in your meditation, then he becomes the donor of everything. Swargap varga phalada. He can give you swarg, he can give you apavarg, that is moksha. But how can this be possible? When someone meditates, how can he become a donor? The answer is Shaktistasya hitadrishi. Because his power is like that when you meditate, he becomes a donor. One who cannot meditate cannot receive anything. One who can meditate, he can give anything. Then when we think about the doctrines of Jainism, अपन जैन सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो फिर ये बात बड़ी अटपटी लगती है। ठीक है, ये ध्यान लगाओ तो ध्यान में आए हुए भगवान सब कुछ दे देते हैं, अथवा स्तुति करो तो स्तुति में इंद्र उनको सबसे बड़ा दाता घोषित कर देता है। लेकिन सिद्धांत से ये बात कैसे सिद्ध होगी? कर्म सिद्धांत से, जीव सिद्धांत से इस पर जब विचार करते हैं, तो फिर छठे गुणस्थान के ऊपर तो साधु आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। यानी अप्रमत्त अवस्था में कोई साधु चले गए और ध्यान में लीन हो गए, तो ध्यान में लीन होने के बाद तो वो आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। और भगवान 13वें गुणस्थान में, और 13वें गुणस्थान में वो सब कुछ कैसे दे सकते हैं? कविवर पंडित ध्यानत राय जी ने पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा है, और उस पार्श्वनाथ स्तोत्र को रविंद्र जैन ने बहुत सुंदर ढंग से गाया है। नरेंद्रम फणींद्रम, पॉसिबली आपने सुना हो। उसमें 2 लाइनें ऐसी आती है भगवान के दातृत्व को प्रमाणित करने वाली। क्या है वो 2 लाइनें? अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, you have given children, you have given nice sons to childless couples. दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, you have donated
funds for the poor. तू ही दुख हरता, तू ही सुख करता. You banish all the pains and you give all the happiness. So, are these words just a formal praise, or do they contain any reality? क्या ये शब्द केवल प्रशंसा मात्र है? स्तुति का अर्थ होता है ना किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना. तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाना स्तुति है. जरा सी बात को खूब एलेबरेट करके खूब मैग्नीफाई करके बोलना स्तुति है. तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारी बातें सिर्फ बोलने भर के लिए हैं, वास्तव में न हो. तो उसका समाधान है. सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि भगवान जो होते हैं उनके पास 9 शक्तियां होती हैं. ज्ञानावरण के क्षय से उनके पास क्षयिक ज्ञान होता है. दर्शनावरण के क्षय से उनके पास क्षयिक दर्शन होता है. मोहनीय के क्षय से उनके पास क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र होता है. दानांतराय के क्षय से उनके पास क्षयिक दान होता है. भोगांतराय के क्षय से क्षयिक भोग होता है. उपभोगांतराय के क्षय से क्षयिक उपभोग होता है. लाभांतराय के क्षय से क्षयिक लाभ होता है. और वीर्यांतराय के क्षय से क्षयिक वीर्य होता है. तो ये 9 शक्तियां उनके पास होती है. इन 9 शक्तियों में एक शक्ति का नाम है क्षयिक दान. कर्म सिद्धांत से विचार करने पर दान शक्ति उनके पास सर्वोच्च है. सबसे उत्कृष्ट दान शक्ति उनके पास है. और जिनके पास सबसे उत्कृष्ट दान शक्ति हो वो अदाता कैसे हो सकते हैं? अब कोई प्रश्न करता है कि दीक्षा के समय तो उन्होंने सब छोड़ दिया था और 5 तीर्थंकरों ने तो शादी भी नहीं की थी और सब त्याग कर दिया था. तो सब कुछ त्याग करने के बाद अब वो किसी को कुछ देंगे भी तो कहाँ से देंगे? जब कुछ है ही नहीं तो देंगे कैसे? तो इसका समाधान है कि मुनि अवस्था में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन केवली होने के बाद में उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है. वो सबसे अधिक वैभवशाली है. संसार में तीर्थंकर से बड़ा वैभव और किसी का नहीं. चक्रवर्ती की संपदा उनके सामने नगण्य है. ये 3 लोक के नाथ है. चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी है. अब वो कैसे देते हैं ये प्रक्रिया अपन जब उनसे मिलेंगे तब उन्हीं से पूछ लेंगे. लेकिन देते हैं ये बात आगम सिद्ध है. अब आप पूछोगे कि आगम सिद्ध है तो इसके लिए कोई आगम का प्रमाण, कोई गाथा श्लोक कि भगवान देते हैं ऐसा स्पष्ट जहाँ लिखा हो. तो धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है जो दे दी सो देवो, जो न दे दी सो कौन देवो. अरहंत देव जो है उनके विषय में चर्चा करते हुए आचार्य वीर सेन स्वामी ने लिखा है कि जो दाता है वही देव है, जो नहीं देते वो देव कैसे हो सकता है. अब ये केवल पंक्तियां हैं. स्पष्टीकरण और भी चाहते होंगे कुछ श्रोता. Some listeners might want more clear explanation of this. So that clear explanation, however, that clear declaration we can give, which has been declared by Acharyas. Acharya Kundkunda Swami has written in Bodh Pahud Granth. Out of the Ashta Pahudas, there is one Bodh Pahud. आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बोध पाहुड़ ग्रंथ में लिखा है
बिकॉज क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि ये दयानंद राय पंडित जी ने जो कर्तावाद भर दिया है कि अपुत्रीन को तो भले पुत्र की ने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, ये सब भर दिया उन्होंने अपने तरफ से। ऐसा कोई भगवान का स्वरूप थोड़ी होता है। तो उसका उत्तर देखिए आप आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथा में, बोध पावड़ की 24 नंबर की गाथा है, उसमें आचार्य लिखते हैं, सो देवो जो धम्मम अत्थम कामम सुदेयनाणम च सो देदि जस हो देहु धम्मो अथोय पवज्जा। बोले कि देव वो हैं, अरहंत देव वो हैं। अष्टपावड़ की 24 नंबर गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि अरहंत देव वो हैं जो भली प्रकार अच्छे ढंग से देते हैं। क्या क्या देते हैं? अर्थम अर्थ और कामम। अब देखिए दोनों बातें दयानंद राय जी ने जो कही थी वही कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी। बल्कि ये कहो कि कुंदकुंद आचार्य ने जो कही थी बात वो दयानंद राय जी ने कही है। उनने अपने मन से कुछ अलग नहीं कहा। कुंदकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं कि वो अर्थ प्रदान करते हैं, वो काम प्रदान करते हैं। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, अर्थ प्रदान करते हैं। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। और धम्मम, वो धर्म प्रदान करते हैं। धर्म का अर्थ रत्नत्रय है, और रत्नत्रय दीक्षा के समय प्राप्त होता है, एक अपेक्षा। फिर नाणम च, ज्ञान प्रदान करते हैं। अब स्वाभाविक है कि इनमें से कुछ चीजें तो भगवान के पास समझ में आती है कि है, ज्ञान भी है, रत्नत्रय भी है, पर ये अर्थ और काम वाली बात समझ में नहीं आती। तो उसका उत्तर आचार्य कुंदकुंद स्वामी उत्तरार्ध में दे रहे हैं, सो दे दिजस हो देहु धम्मो अर्थोय पदवज्जा। जिनके पास होता है वही देता है, जिनके पास नहीं होता वो नहीं दे सकता। चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, प्रव्रज्या है, दीक्षा हो। दीक्षा के बारे में भी लिखा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कि भगवान दीक्षा भी देते हैं। प्रक्रिया अलग है उनकी। अब कल्पतरु है, उसके पास किसी ने कुछ मांगा और वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कल्प वृक्ष में से कोई हाथ निकलता है बाहर और हाथ निकल करके उसको मनुष्य के समान कुछ उसकी झोली में डाल देता है। ऐसा नहीं, वो प्रक्रिया है। तो भगवान की कोई अलग प्रक्रिया होगी, अपन इंतजार करके कभी भविष्य में समझ लेंगे। अभी तो जितनी जानकारी है उस पर श्रद्धा रखें और स्वीकार करें। और जब ये बात स्वीकार होगी तो आपको प्रार्थना करने में आनंद आएगा। भगवान को अदाता मानकर प्रार्थना करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आज तक किसी ने दीवार से पैसे नहीं मांगे। और भगवान अगर आपकी श्रद्धा में अदाता है तो फिर आप कैसे उनसे कुछ मांग सकते हैं? जो आचार्य समंतभद्र स्वामी मांग रहे हैं भगवान से, पुनः तो चेतो मम नाभिनंदनो जिनो चितक्षल्लकवादी शासन, जिन्होंने छोटे मोटे वाद विवाद करने वालों के शासनों को पराजित किया, ऐसे आदिश्वर प्रभु, हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मन को पवित्र कर दे। आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की उन्होंने। फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, कारुण्यान मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु। करुणा करके हे भक्पा शांतिनाथ प्रभु मेरी दृष्टि को प्रसन्न कर दीजिए, मैं अंधा हो गया हूं। और तुरंत उनकी आंखें ठीक हो जाती है। तो ये प्रार्थना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब की थी शांतिनाथ भगवान से, क्या उन्होंने भगवान को अदाता मान करके की थी प्रार्थना? और अदाता मानकर करने वाले को कुछ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि उसके ध्यान में जो भगवान का स्वरूप है वो विपरीत है। क्षायिक दान लब्धि के धारी भगवान अदाता हो ही कैसे सकते हैं? पर इतना जरूर है कि जो वस्तुएं भगवान के अलावा कहीं मिल जाती है
उसको वहाँ मांगना ज़रूरी नहीं है। कभी मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन वहाँ अगर आपको प्रार्थना करनी हो तो ऐसी प्रार्थना करो जो चीज़ कहीं ना मिले, वो चीज़ वहाँ मांगो। जैनम जयतु शास्त्री। ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಭಗವಂತ ವೀತರಾಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತ ಏನನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೀತರಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವಂತಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನೂ ನಮಗೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಆದಿನಾಥ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀತರಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೀತರಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಡುವವನು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ವೀತರಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಂತ. ಬೇಡುವವನು ಏನೇನನ್ನೂ ಬೇಡದಲ್ಲ, ಬೇಡುವವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಏನೇನನ್ನೋ ಬೇಡೋದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕುಂದ ಭಗವಾನರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸಮಂತ ಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಆದಿಪುರಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರರು ನಮಗೆ ವೀತರಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಚ್ಛಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್. ವರ್ಧತಾಂ ಜೈನ ಶಾಸನ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ.